model to fetch the data. Okay, if the data is there, model will send that data to controller. Okay, that data is going to be received by controller, and then controller will again display that data or view. Okay, that's the idea. And once it's going to be on view, then user can be able to see that data. There is a possibility that actually that like a data might be not there in the model, or like whatever we are searching, that is not available in somewhere in the database. So in that scenario, this controller will be taking care of that actually directly. Like a controller will be directly display or notify that view that okay, now data is not there over there. Okay, so job of coordination is going to be done by this controller. Okay, a model is going to be, as I told you, that having the business domain entities over there, and the view is simply nothing but to display data or specific user interface, right? So we have to understand this flow. Okay. Now to understand this flow, we'll go by the one of the example over there. So we'll start with Visual Studio .NET. We'll create a simple project. So create new project. And now we have to find out ASP.NET Core application over there. Okay. ASP.NET Core web application. This is what actually you have to select. Okay. ASP.NET Core web application. Okay, a language is C sharp. Okay, a platform is Windows. Okay, either you can go like this way, or you can select a condition over the C sharp platform Windows, right? Or project type as web application over there. Okay, so this is the first first step we have to take to find out the template. Okay, because we have to integrate our .NET Core with MVC. Okay, MVC is the pattern. .NET Core is something like a cross-platform open source application development over there. So we are combining both the things together over there. So we'll select this core web application. Follow the next. Specify the name for your application. Let's say this is first core MVC. Okay. Then specify the location where you like to save that. Then click on the create option. Then if you have the higher version, then it will automatically create that specific type of the template is automatically there. If you have the lower version of this, not updated your Visual Studio, then you will get a screen like this way. Okay. Uh, like to select the template here once again. So you can have, now I'm having the ASP.NET Core 2.1. You may be getting the 3.1 over there, or maybe 5 over there. That is the latest one. Then what type of the template you have to select? Empty, API, web application over there. Okay, that is going to be Razor Pages. You can go for model view controller over there. Okay, and many other technologies like Angular and all are available. Okay, as we are going for this first application over there, so we'll not select this model view controller. We'll select empty. Okay, so we are just simply creating a core web application without this model view controller. Okay, MVC, without MVC. That is the first step we have to adopt for. Once you select the empty over there, just click on the create option, and we'll get something like one of the solution explorer with some of the files. Okay, so let me close other windows. You get the solution explorer contains some of the files over there. Okay, dependencies are some packages which are required for our application. Okay, so you can add on later on also. Okay, like we have the NuGet over there and SDK of .NET Core. Okay, then very important file we have, that is the program.cs. Program.cs, let me increase zoom little bit. Okay, now this program.cs contains nothing but one of the class, that is public class program, contains one of the method, nothing but main method, that is the entry point of for our program. Okay, now this main method, okay, contains, or we are calling one of the method here called as create web host builder. Okay, now what is the role of that web host builder? To create web application over there. So create web host builder is another method written in below that main method. Okay, that contains nothing but pick up the data for the startup. Okay, so this is something like called as a startup file also.
startup.cs. Okay, so indirectly we are calling this startup file, startup.cs file from our main method over there. Okay. Now, what is that main, startup.cs file? This is one of the configurations class. Okay. So when you start your application, what do you like to do over there? That will configure somewhere here in the startup file. Okay, startup.cs. So it contains a configured service as a one of the method, and then some of the deployment point of view checking is there, or you can add on the production condition over there. Okay, and then finally we have this run option to display the one very small message over there, hello world. Okay, so without making any changes over there, we'll just run this application. So we'll just click on run. We did ये हम लोगों ने कल भी cover किया था. So we are getting the output here, but it's something like a secure security reason. It's prompting you for this potential security risk option. So we'll just click on advanced, just select accept risks and continue, and we'll get a small application output over there called as hello world. Okay. Now we'll just close this. That's the basic application over there. Okay. Is it contains a MVC pattern right now? MVC is implemented. Yes. Let me know from your side. Have we implemented MVC? No. There's nothing like a controller views and model over there, right? Now it's just a core application, .NET core application. Okay. Now there are, as I told you, the startup file, okay, program file, okay. And now what we'll do actually, we'll create a simple MVC application with adding some of the folders, okay. Okay. So we'll go by this right click option, then we'll go for the add option, and then we'll select this one of the folder, okay, which is going to be required to create a web application over there. Okay. Add, and then we'll follow new folder, and then we have to specify a name of our folder as a controllers. Okay. Now, once we have the controller as a folder over there, we have to create a controller over there. How we'll create a controller over there? With the help of right click here, add option, and we'll get something like a controller as a one of option over there. Okay. So we have to select that controller. Okay. So what is the role of controller? As a middleman. Okay. Like a coordination between model and view. So, and user will first, whatever the address we'll pass it in the address bar, that will be sent or that will receive by controller. Okay. So for that we are creating a controller. So MVC controller empty. We are not going for this something like a predefined over there. We are just simply creating a controller over there, and just click on add option. Okay. And once you click on add option, okay, if you are using a higher version, you will get the by default home controller over there. If you are using the lower version, okay, we'll get the output like we'll get a screen like this way. Okay. So make a change in respect to controller, make the default controller over there name as home controller. Home controller is the default controller. Okay. Then click on add option. तो क्या किया हम लोगों ने, एक फोल्डर बनाया कंट्रोलर्स, और उसमें हम लोगों ने एक कंट्रोलर बनाया. फिर से मैं बता रहा हूँ, कंट्रोलर फोल्डर होने के बाद ऐड किया एंड देन कंट्रोलर्स, और उसमें नाम दे दिया हम लोगों ने होम कंट्रोलर्स. ओके. तो ये होम कंट्रोलर क्या है? होम कंट्रोलर इज अ वन ऑफ द क्लास extended from controller class. Okay. And it contains one of the method also. What is that method? Index. Okay. Index is the method that is first method. Okay. Or the like a default method available in home controller to run your application. Right. So if you go by this, we'll have the home controller as a, and it contains one of the method name as index over there. Okay. iAction result over there. What it returns? It returns view. Okay.
but view is not yet created over there, so we have to create now view over there. Okay, so once you have this index as the action method, action बता रहे हैं हम लोग कि क्या एक्शन लेना है और उसके लिए कहाँ पे वो एक्शन को, तो हम लोग ने क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न व्यू, व्यू रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन व्यू तो होना चाहिए, पहले व्यू बनेगा तो भी वो रिटर्न करेगा, राइट ना। कंट्रोलर वो व्यू रिजल्ट डिस्प्ले करेगा व्यू को। So there is no view. So what we'll do now, we'll go for new folder once again, or you can go by the simple option also by selecting this option. So before that, I like to recall that one first thing, what we did actually in this particular project, we created one of the folder. Then after that, we add on controllers over there. Okay. After adding controllers, now we are going for the next thing, that is we'll add on view over there. How we'll add view? So select that index, right click, and there is the option called as add view. Okay. Now again we'll get some like a view name as index. Okay, क्योंकि हम लोगों ने जो कंट्रोलर क्रिएट किया उसमें हम लोगों ने दिया इंडेक्स, तो इंडेक्स जो एक्शन रहेगा वो उसको फायर करने के बाद हमारा व्यू क्रिएट हो रहा है. ओके, सो विदाउट change in your default settings, we have to just click on add option, add button. Okay, so this is nothing but a view. View के इसके लिए यूज होता था view for display. Okay, तो यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए कुछ नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक लिखा है लाइन यहाँ पे h2 index. Okay, और like this is my first MVC page, something like that. So you can write down first MVC sample, right? So ये व्यू है. व्यू क्या होता है, इफ यू गो बाय दिस व्यू, सो ऑटोमेटिकली कंट्रोलर आएगा वो, और उसमें हम लोगों ने एक व्यू बनाया जिसका नाम है इंडेक्स. ओके, डॉट CSHTML. इंडेक्स पेज का नाम हो गया. HTML नॉर्मली होता है, लेकिन ये C# का व्यू है, तो इसके लिए CSHTML करके लिखा रहेगा. ओके, यहाँ पे कुछ और भी पेजेस हो सकते हैं हमारे, एडमिन के लिए हो सकते हैं, राइट. यूजर के लिए अलग व्यू हो सकता है. ओके, उसके लिए अलग अलग कंट्रोलर क्रिएट करने पड़ेंगे. तो एक सिंपल जो हम लोगों ने व्यू क्रिएट किया. ओके, तो क्या होगा इससे, अभी ध्यान में देखो फिर से, विल गो बाय द कंट्रोलर. कंट्रोलर जब भी हम लोग एड्रेस बार पे टाइप करेंगे हमारे एप्लीकेशन का नाम, तो कंट्रोलर फायर होगा. कंट्रोलर का डिफॉल्ट ए मेथड है, इंडेक्स मेथड, वो फायर होगा. और वो फायर होके क्या बता रहे हैं हम लोग, रिटर्न करो व्यू. तो इंडेक्स व्यू कौन सा है हमारा, ये. इसमें क्या आउटपुट है, फर्स्ट MVC सैंपल. तो ये हम लोगों ने अपना आउटपुट डिजाइन किया, और जो इंडेक्स कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड से रन होगा. ओके, नाउ इन एडिशन टू दिस वी हैव टू डू सम additional changes in our startup.cs. Okay, because we like to run our own default view over there, and this is a core application. Okay, first core MVC हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाया था, हम लोग अभी ऐड ऑन कर रहे हैं MVC. तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कहाँ पे, startup.cs. Before that, let me know whether you understood this controller and views properly. Yes, students, please let me know. टाइप करो चैट बॉक्स में, कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है, व्यू कैसे क्रिएट करना है. व्यू के लिए फिर से बता रहा हूं मैं, व्यू क्रिएट करने के लिए क्या करना है, मैंने बताया जो एक्शन मेथड है इंडेक्स, वहां पे जाके ऐड व्यू करना है. यस यस, आई एम डूइंग दैट. यस, सी वंस अगेन. ओके, यहाँ पे पहले कंट्रोलर क्रिएट करने का कुछ प्रॉब्लम है, सबको समझा कंट्रोलर. ओके, नाउ विल प्रोसीड फॉर व्यू. व्यू कैसे क्रिएट करना है, तो कंट्रोलर का जो क्लास है उसमें जाना है, और जो इंडेक्स है उस पर राइट क्लिक करना है. यहाँ पे इंडेक्स पे राइट क्लिक, और क्या सिलेक्ट करना है, ऐड व्यू. ऑलरेडी बनाया है वहां पे, तो इसके लिए मैं सीधा ऐड, अभी फिर से मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ. ओके, और यहाँ पे नाम देना है. ठीक है, यस, डन, गेटिंग. यस और नो, श्वेता. ओके, विकास. ओके, फाइन. ओके, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स. सो कंट्रोल क्रिएट हो गया, व्यू क्रिएट हो गया. अभी हम लोग को थोड़ा सेटिंग्स
चेंज करना है। तो सेटिंग के लिए हम लोग को कहाँ जाना है, स्टार्टअप में जाना है। ठीक है, स्टार्टअप में जाके हम लोग को कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को ऐड ऑन करना पड़ेगा कि नहीं, ये हमारा एमवीसी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, एमवीसी पैटर्न यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्विसेज डॉट ऐड एमवीसी, फर्स्ट मेथड ऐड एमवीसी। ओके, ये चीज लिखेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन अभी क्या होगा, एमवीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट हमारा हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए, हमारा आउटपुट हमारे व्यू से चाहिए। तो ये आउटपुट को हम लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करके कमेंट करना है। ठीक है, और हम लोग को बताना है कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट आउटपुट है कंट्रोलर का, उससे रिडायरेक्ट करो। तो ऐप डॉट यूज एमवीसी विथ डिफॉल्ट रूट। ओके, ये लिखना है हम लोग को एक मेथड जिसको बता रहे हैं हम लोग। दो चीजें की है यहाँ पे हम लोगों ने, एक सर्विस जो हमारा मेथड है, ओके, जो HTTP to add on that services dot add MVC। ठीक है, फर्स्ट कहाँ पे गया हम लोगों ने, startup dot cs में। और you can take the screenshot of this if you want। And the second change is this one। Okay, let me select that app dot use MVC with default। इसको बता रहे हैं कि हम लोग के जो डिफॉल्ट रूट है, मतलब हमारा कौन सा डिफॉल्ट रूट, होम कंट्रोलर का। ओके, उसको फॉलो करो। ओके, उसके लिए हम लोगों ने कुछ और रूट नहीं बनाया, उसका पाथ कुछ और नहीं रखा, हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट रूट जैसे होता है उसको फॉलो करने के लिए बताया। ठीक है, यस, इट कंफर्म थ्रू चैट बॉक्स। तीन चीजें की हम लोगों ने। ओके, एक एप्लीकेशन बनाने के बाद एक कंट्रोलर क्रिएट किया, उसके बाद हम लोगों ने व्यू क्रिएट किया, और फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, स्टार्टअप डॉट सी एस में दो चीजें ऐड की हम लोगों ने। ओके, इफ यू वांट लेट मी टाइप दैट इन ब्राउजर विंडो। एंड सेकेंड लाइन इज डिफॉल्ट। ओके, यस, हम लोग गो बैक वंस अगेन। ठीक है, अभी इसको रन करेंगे। So what change we are doing in this application? Now this is MVC application। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी MVC इम्प्लीमेंट किया हम लोगों ने। अपना हम लोगों ने कंट्रोलर क्रिएट किया, अपना व्यू क्रिएट किया, और उसको रन कर दिया। ठीक है, अपना खुद का कंट्रोलर, खुद का व्यू, जो हम लोगों ने लिखा था फर्स्ट MVC सैंपल, वो उसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अभी क्या बाकी है, कंट्रोलर हो गया, व्यू हो गया, ना व्हाट इज रिमेनिंग, व्हाट इज रिमेनिंग, और कुछ बाकी है यहाँ पे, एनीवन? What we have to do apart from this? We have to go for view, right? View, nahi, sorry, we have to go for now model, right? Yes students, मॉडल नहीं क्रिएट किया हम लोगों ने, अभी मॉडल को क्रिएट करेंगे। अभी मॉडल भी क्या होता है, एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, डेटाबेस का डेटा हम लोग फेच करते हैं। तो डेटाबेस अभी तक हम लोग नहीं, अभी नहीं क्रिएट करें, हमारा सिंपल एप्लीकेशन है तो डेटाबेस नहीं क्रिएट करेंगे। लेकिन हम लोग एक अपना यूजर डिफाइन क्लास क्रिएट करेंगे। ओके, जो रिप्रेजेंट करेगा कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ओके, सो यू कैन हैव द एप्लीकेशन विदाउट मॉडल ऑल्सो, जो हम लोग ने अभी क्रिएट किया विदाउट मॉडल। ओके, अभी उसमें एड ऑन करेंगे हम लोग मॉडल भी। ओके, सो ये जो आउटपुट है वो स्टैटिक आउटपुट है, फ्लैट स्टैटिक HTML का आउटपुट आ रहा है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ओवर देयर। Whatever the data is there in view, that we are just showing them। Okay, but what technically we have to do, actually we have to get the data from the model। Okay, and then that getting data from the model is indirectly from the database, and then that data will be view।
okay, by view uh, object over there, right? So technically we have to add on MVC over there, okay? So in this architecture, the model is going to be generated by the controller, okay? And then that data will be passed to view, and then user will see that output over there, okay? That is what actually we'll do now. So for that, we'll again go by, we'll create a new folder here for model, okay? And then we'll add on the certain things in that actually, okay? So controller ho gaya, view ho gaya, and then we change some of the settings in our startup.cs. Now we'll go for the third option, okay? Now how we'll do that actually? So again, right click, select add option, and select new folder, and then specify the name as models, okay? Let me know from your side whether you are getting this. Model create हो गया. Now right click, add. Model is nothing but C# का class. So what we'll do now, we'll go for this class only, okay? So class create कर रहे हैं. Let's say I like to create a model is nothing but class. Remember this, okay? So एक class create करेंगे हम लोग जो represent करेगा हमारे table को, entity को. So let's say students, okay? For example. एक क्लास हो गया, मॉडल के अंदर क्लास बना लिया हम लोगों ने. दिस इज वेरी कॉमन, लाइक यू माइट बी यूज्ड टू जावा लैंग्वेज एंड सी शार्प, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस, ओके? So there is a class name as students.cs, okay, like this inside that modules, okay? Now we have to create some of the member attribute of that. So we'll go for public, let's say int roll number, right? And then we'll have get and set properties, get and set over there. You might be aware of that. So public, then string, okay, let's say student's name, again get set properties, get and set, getter and setter, okay? Object oriented programming में आपने definitely use किया रहेगा, okay? सो ये एक क्लास बना लिया जहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग एक एंटिटी, ओके? स्टूडेंट्स इज वन ऑफ द एंटिटी, एज्यूम दैट. एंड एज आई टोल्ड यू दैट डेटाबेस हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, सिंपल क्लास, सिंपल मॉडल से डेटा को फेच करने की कोशिश कर रहे हैं. तो एक एंटिटी बना लिया हम लोगों ने, क्लास बना लिया, क्लास में रोल नंबर और एस नेम, दैट इज द स्टूडेंट्स नेम, ऐसे दो एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? यस स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो. थर्ड स्टेप कर रहे हैं हम लोग अभी. मॉडल क्रिएट किया और उसमें क्या किया हम लोगों ने, एक क्लास बना लिया. कैसे मॉडल क्रिएट करना है? एनी वन ऑफ यू राइट क्लिक, ऐड एंड देन सिलेक्ट क्लास ऑप्शन, ठीक है? यस, फास्ट हो रहा है क्या? मुझे थोड़ा बताओ कोई. इज इट फास्ट? प्लीज लेट मी नो. It's fine ना, all of you? Okay. चलिए, तो यहाँ तक ठीक है. तो हम लोगों ने बताया कि ओके, नाउ वी वांट व्यू को जो डेटा जाएगा वो हमारा मॉडल से जाना चाहिए, ऐसे कुछ हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ओके? तो अभी कंट्रोलर को पता तो होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं. और मैंने बताया कि डेटाबेस से डेटा नहीं आ रहा है, तो कंट्रोलर को हम लोग कैसे बताएंगे? तो कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे खुद का डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास, ओके? दैट यू ऑलरेडी यूज्ड टू, ओके? जैसे कि हम लोग से डेटा पेज कर रहे हैं, तो मॉडल, ओके, जो डेटा पेज करेगा, what is happening? Now it contains one of the class name as a students, ओके? उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ओके? इक्वल टू न्यू ऑफ मॉडल्स डॉट स्टूडेंट्स, ओके? इससे हमारा क्लास बनेगा और क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके? एंड देन विल यूज सम ऑफ द मेंबर ऑफ दैट, ओके?
मेंबर्स कौन से हमारे रोल नंबर इक्वल टू 101, ओके, एंड एस नेम इक्वल टू, हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, ओके, सम नेम हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंट्रोलर को बताया कि हाँ कंट्रोलर हमारे पास डेटा है मॉड्यूल्स में, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लो। तो मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट्स, हमारा मॉड्यूल था उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट्स करके, और फिर उसको असाइन कर दिया, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस नहीं तो हम लोगों ने सीधा हमारे क्लास के मेंबर्स को असाइन गेट एंड सेट किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये ये करेंगे तो कौन सा मेथड कॉल होता है, गेट और सेट, एनी वन ऑफ यू, गेट कर रहे हैं कि सेट कर रहे हैं? सेट। सेट कर रहे हैं। हाँ, विकास भूलेगा तो मैंने ही बताया था एक्चुअली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने ही बताया था विकास। ओके, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट हो गया क्रिएट, और मेंबर्स को हम लोगों ने असाइन भी कर दिया, सेट एट्रीब्यूट्स कर दिया उसको। फिर अभी क्या करना है, अभी जो रिटर्न करेगा व्यू हमारा, यहाँ पे हम लोग को वो बताना पड़ेगा कि रिटर्न करो व्यू विद दिस डेटा, ओके। तो स्टूडेंट्स का डेटा हम लोगों ने व्यू के साथ असाइन कर दिया, ओके। ये कैसे कर रहे हैं अभी, सिंपल इसमें बता रहा हूँ मैं। कंट्रोलर को बता रहे हैं हम लोग, कंट्रोलर जब भी क्रिएट होगा यहाँ पे आएगा, तो कंट्रोलर के पास कुछ डेटा है, ओके, और वो डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यू के साथ पास कर रहे हैं, ओके। तो अभी डेटा हमारा जो असाइन किया हम लोगों ने, वो व्यू में जाएगा, ओके। तो व्यू क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट करना है व्यू को। यस, लेट मी नो फ्रॉम योर साइड। अभी डेटा हमारे पास है, कुछ डेटा हम लोगों ने असाइन कर लिया, ओके। टेक्निकली इसको असाइन करने के लिए डेटाबेस से फेच करना पड़ता है, लेकिन डेटाबेस से फेच नहीं कर रहे, तो हम लोगों ने अपना ही खुद का रोल नंबर और नेम को असाइन कर दिया। इज इट फाइन? दिस लाइंस ऑफ कोड सिलेक्टेड जो रखा है मैंने यहाँ पे, kindly confirm to chat box. Yes, some of the students only interacting over there. Yes, Shweta, Vikas, Simran, yes, Ankit. What about other students? So we have just an object of the our one of the class, okay, and assign the something into that, something to that object. Yes, Trupti, fine. ओके, सो एक क्लास बना लिया हम लोगों ने मॉडल के अंदर, और उसको आउटपुट बना के कुछ डेटा असाइन कर लिया, और वो डेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यू के साथ भेज रहे हैं, व्यू में भेज रहे हैं। और व्यू में जाएंगे, ओके। तो व्यू में चाहते हैं कि यहाँ पे डेटा वो प्रेजेंट करे, ओके। व्यू का आइडिया ही है कि प्रेजेंट करना, बराबर, ठीक है? यस और नो? तो व्यू में प्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, डायरेक्टिव्स देना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो पेज डायरेक्टिव्स यू मस्ट बी ऑलरेडी यूज टू, ओके। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉडल वेब एप्लीकेशन जो भी हम लोगों ने बनाया, वेब एप्लीकेशन कौन सा बना रहे हैं हम लोग, फर्स्ट कोर MVC, ओके, डॉट कमिंग, लेट मी चेक, फर्स्ट कोर MVC डॉट देन मॉडल्स एंड देन अवर मॉडल नेम स्टूडेंट्स, ओके। तो ये बता रहे हैं, डायरेक्टिव दे रहे हैं कि हमारा डेटा कहाँ से, कौन से मॉडल से आ रहा है, ओके। तो एक पेज डायरेक्टिव से फर्स्ट कोर MVC हमारे एप्लीकेशन का नाम है, मॉडल से हम लोग को स्टूडेंट्स का एंटिटी का डेटा फेच करना है, तो ये ऐसे लिखेंगे तो वो इंक्लूड हो जाएगा मॉडल हमारे इसमें। तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स डिटेल्स, ओके। फिर उसके आगे लिखेंगे, हम चाहते हैं कि H2 में डिस्प्ले करें, तो H2 में, ओके। कुछ डिस्प्ले करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा मॉडल डॉट एंड देन रोल नंबर वाला, ओके। तो रोल नंबर हमारा फर्स्ट कंट्रोल है जो डिस्प्ले करना चाहते हैं,
and then break, and then again we'll present that by h2. Let me copy that and s name. ओके, ये दोनों चीजें हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं। पहले रन करते हैं, फिर हम लोग फिर से बात करेंगे इस पे। If everything is fine, we'll get the something like output of that particular हमारे जो simple MVC हम लोगों ने create किया, the details, the roll number, okay, and Amit over there. You can present that by properly roll number, okay, and then student's name. Detail of okay, so like that way you can present. Run this. Okay, we can present in a better manner because we are integrating with the H1 and H2. So next line पे output आ रहा है, ठीक है? So fine. Now we will try to understand this. Let me stop this application. Okay, before that, let me know from your side. आउटपुट समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हैं जो भी हम लोगों ने डिफाइन किया था क्लास में, ओके, एक एंटिटी में, और वो डिस्प्ले किया, ओके। लेकिन डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं हम लोगों ने? एमवीसी पैटर्न से, ओके। नाउ लेट्स सी वंस अगेन। तो हम लोगों ने यहाँ पे गए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया हमारे एंटिटी का, उसमें डेटा रखा, ओके। डोमेन रिलेटेड हमारा जो मॉड्यूल था, ओके, ये डोमेन ओरिएंटेड होगा जहाँ पे डेटा रहेगा हमारा and जो डेटा डिस्प्ले करेगा, ओके। तो रोल नंबर और नेम करके फिर वो मॉडल का डेटा हम लोगों ने यहाँ पे लेके आए पहले कंट्रोलर में, ओके, उसको असाइन कर लिया ऑब्जेक्ट बना के। ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। फिर व्यू के साथ उसको भेज दिया, ओके। तो व्यू को क्या भेज रहे हैं हम लोग? स्टूडेंट्स एज ए वन ऑफ द ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। तो व्यू क्या कर रहा है? पेज डायरेक्टिव ऐड किया तो पता चलेगा कि ओके, ये डेटा इस वन ऑफ द एंटिटी से फेच करनी है। तो क्या क्या प्रेजेंट करना है हम लोग? मॉड्यूल डॉट रोल नंबर। सो ऑटोमेटिकली रोल नंबर का डेटा जो असाइन रहेगा उसको सेट किया है हम लोगों ने, जो वो डिस्प्ले करेगा, और फिर एस नेम का, दैट इज द स्टूडेंट्स नेम का डिटेल्स डिस्प्ले करेगा, ओके। बाद में हम लोग उसको डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिंपल एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से वो डिस्प्ले करेगा। सो प्लीज लेट नो कुछ डाउट है यहाँ पे जो डेटा डिस्प्ले करने के लिए? ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट रहेगा जहाँ पे हम लोगों ने कोर ऐप बनाएंगे, ओके। डॉटनेट कोर के साथ एमवीसी को इंटीग्रेट करेंगे। अभी हर कोई सिर्फ स्टूडेंट्स क्लास के लिए नहीं यूज करेगा, ओके। यूज डिफरेंट, आई लाइक टू सी द डिफरेंट एंटिटी ओवर देयर विद द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ओवर देयर, ओके। सो लेट्स से स्टूडेंट्स है तो एम्प्लॉई है, कुछ और बना लो, ओके। कोई भी रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, जो मैंने बताया कि प्रोजेक्ट करना ही है, उसके रिलेटेड कोई अपना क्लास बना लो, ओके। और फिर उसके एट्रीब्यूट सेट कर दो, और फिर इस यहाँ पे जाके व्यू से उसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए हम लोग को @module डॉट वो एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, देन वी कैन एबल टू प्रेजेंट व्यू दैट। ओके, लेट मी नो, काइंडली कंफर्म, फिर से बताओ। यस स्टूडेंट्स, लेट मी नो थ्रू चैट बॉक्स। ओके, 2 3 4, थोड़ा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लगेगा, बट वंस यू यूज टू दिस थिंग, एक दो बार प्रैक्टिस करना होगा, देन इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल, ओके। एज यू हैव द बैकग्राउंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग background over there, so that is something like assumption over there, okay. So only that pattern we have to adopt, okay. Approach is totally different, but basic concepts are same, like we are having the one of the class, assigning something, and then going through one of the view as a pattern object and display that, okay. So let me revise once again, okay. Some of the students are getting that, okay, लेकिन हम लोग fast revise करते हैं, okay. तो starting with controller, okay, और will
यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे हम लोग, और उसका नाम देंगे हम लोग कंट्रोलर करके। ठीक है, फिर कंट्रोलर को राइट क्लिक करना है, ऐड करना है और कंट्रोलर ऐड करना है। ऐसे हम लोग अलग अलग कंट्रोलर्स क्रिएट कर सकते हैं, एडमिन के लिए, यूजर्स के लिए। फिर एक बार कंट्रोलर क्रिएट हो गया, देन व्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाना है, कंट्रोलर के अंदर राइट क्लिक करना है और ऐड व्यू करना है। इससे व्यू क्रिएट होगा। ओके, बाय डिफॉल्ट व्यू रहता है होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स करके, इंडेक्स एक एक्शन फाइल कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्टअप डॉट सी एस पे जाके एमवीसी को ऐड करना है, तो सर्विसेज डॉट ऐड एमवीसी, और बाय डिफॉल्ट रूट पे उसको चलाना है। सो ऐप डॉट यूज एमवीसी विथ डिफॉल्ट रूट। ओके, ये दो चेंजेस करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन को डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन एमवीसी के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर हम लोग ने क्या किया, मॉड्यूल्स ऐड कर, मॉड्यूल्स ऐड करने के लिए क्या किया हम लोग ने, एक फोल्डर बनाना है और फोल्डर में राइट क्लिक करके ऐड करके क्लास क्रिएट करना है। ठीक है, क्लास क्रिएट करने के बाद जो काम करना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द सिंपल क्लास विथ गेट एंड सेट एट्रीब्यूट्स। ओके, ये होने के बाद हम लोग कंट्रोलर में गए और कंट्रोलर में उसको, इफ यू वांट एक्चुअली आई विल शेयर दिस कोड, कंट्रोलर में जाके उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो हमारा एंटिटी है। ओके, जो क्लास बनाया था उसका ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमारा जो व्यू है उसके साथ ये कंटेंट को भेज दिया हम लोगों ने। तो व्यू में जाके व्यू के साथ व्यू प्रेजेंट करता है, व्यू प्रेजेंट करता है तो मुझे जो डेटा मेरा है वो मॉड्यूल में था उसको प्रेजेंट कर दो। तो यू कैन प्रेजेंट दैट बाय डिफरेंट वे। ओके, अलग कंट्रोल्स भी यूज कर सकते हो, टेबल में प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। जो भी सी एस एस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, बूटस्ट्रैप के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए डायरेक्टरी यूज करना है एट द टॉप, और उसके बाद एट द रेट पेज, सॉरी एट द रेट मॉडल डॉट एट्रीब्यूट नेम, एट द रेट मॉडल डॉट एस नेम हो गया। ओके, इससे क्या हो जाएगा, वो कंटेंट डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। ओके, so this is the basic example of MVC. Okay, so .NET Core with MVC. So what you have to do actually, you have to pick up another example. Okay, you have to create another models over there. Okay, take employee, take anything. Okay, any class over there. Okay, and then set the attributes for that and then submit that assignment. So I hope that you are getting this. Okay, the first simple application with MVC. Please kindly confirm now. In case any doubts are there, please let me know. Okay. Uh, if you want a screenshot of that, you can able to take the screenshot, or today evening I will share that entire application over there. So you can refer for your assignment. Okay. Yes, sir, I will do that. अभी समझा रहेगा तो हम लोग कोड को मैं शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब एटलीस्ट आपको स्टेप्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया स्टेप्स को, एक पहला एप्लीकेशन है तो थोड़ा समझने के लिए हम लोग को टाइम लगेगा, बट वंस यू नो दैट ओके ये स्टेप्स फॉलो करना है। ओके, हम लोग डायरेक्टली भी एमवी इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट इज इन बिल्ड अवेलेबल, टेम्पलेट अवेलेबल, बट इनिशियली इट इज इफ यू गो बाय दैट रेडीमेड देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, दैट्स व्हाई वी हैव टू गो बाय दिस सिंपल ऑप्शन। Okay, we are creating our own controller, own views, and one more sorry, one models over there, and then displaying that content through our views. Okay, ठीक है. So let me know in case any doubts are there, please let me know. Meanwhile, let me take attendance.
Passing marks for theory papers, 60. 60 is the sorry, 60 is the total marks over there. 24 is the passing. Same pattern only, BSc level only. And for practical, it is 20. Okay, fine. No problem, no problem. Okay, then, yes. So we'll end with our lecture. Thank you, students.